अभी से सबको लिंक ले लो, तब तक आज ऑनलाइन हो जाएगा। हाँ ठीक है। सर मैं यूट्यूब पे चेक कर लेता हूँ। या। रोहन। अक्षय सर, यस वो शॉर्ट हो गया लिंक। सर, लिंक तो ऑन हो गई है। शंकर सर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। शंकर गुजर सर। रोहन, यस सर। good to go? यस सर, यस सर, गुड टू गो। Yeah. Yagnik sir has joined. Akshay. Just a minute, ma'am. Checking. Yes, ma'am, he is joined. Achha. Yagnik sir, you can unmute yourself. Good morning, Yagnik sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. How are you? Very fine, sir. Very fine. Yeah. Sunday. कैसी हैं आप? भालो अच्छी. Bhalo achi. Yes. Very good. आवाज ठीक ठाक सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है. Okay. Yes, sir. Just wait for another 2-3 minutes. The students are also joining. Yeah. ठीक है. सर, आपका कोई प्रेजेंटेशन है क्या सर? या आप खाली? No, खाली है. बिल्कुल present is. I did not got the time actually. Yeah. Exactly. So you're going to talk. I was away to Delhi. And yesterday, day before yesterday only came. Yes. Actually, we got this letter from the UGC just 2 days back. And they told us to conduct some exhibition also, which was little difficult. Yeah, that has been written and that's why I asked you. आप कोई exhibition लगा रही हैं क्या? नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो वो एक सुन तो ले. बहुत आजकल की generation को मालूम नहीं है partition horror. And it's a nice theme taken up by UGC, which should also be remembered and people should be knowing about it. Yeah, everybody should know.
Indians this side that time and Indians that side, both of them suffered. Both of them. Yeah. Suffering was there. The only Suffering thing was there. Yes. Yeah. The only thing was that the suffering was there. So that suffering should not occur again. Yeah. That should be our goal, and that should be our True. we should take that particular pledge that this suffering should not happen. But it is happening. Right. You see the Russia and Ukraine. You see the Taiwan and China. And then here in Kashmir also. Right. Despite all the education, all the technological development, everything, but still we are there in the, what you can say, that in the same set of the mindset and all. Mindset. True. Since my father was from Bangladesh, so before partition, they had already come to Calcutta, but the partition flight, he has seen it, 1947. So, before partition, they had come to know, so they sold the land in the Bangladesh and took very close by in Calcutta. So, from my native place to the border of Bangladesh, only 3 railway stations we have to cross. At Calcutta. It's at the Calcutta interior end, and from Bangladesh, it is just 3 stations. So my father had spoken so many horrors things what had happened that time. You must share this. You must share this with the students also. Yeah. They should learn something. Yes. That it should not occur again. And again, those women always suffered more. Women always suffered more. Akshay, can we start now? Yes, ma'am. We are good to go. Yeah, I think Parul is giving the introduction. Parul, you can start over. Sir, we can start, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Good morning, respected principal, ma'am, my dear colleagues, students, and a very special greeting to our distinguished speaker for today, Mr. Virendra Yagnikji. Happy Independence Day week. This year marks 75 years of our independence, and I'm sure each one here is a proud Indian today. This has not been easy and is now duly recognized by our Prime Minister Narendra Modi ji. He had declared August 14 to be observed as the Partition Horrors Remembrance Day last year. This year marks the first day of such Horrors Day. The Partition of India, in its most basic form, is a story of unprecedented human displacement and forced migration. It is a story in which millions sought new homes in new environments that were alien and resistive. More than being a story of a violent divide based on faith and religion, it is also a story of how way of life and ages of coexistence came to a sudden and dramatic end. Partition Horrors Remembrance Day is a national memorial day in India that commemorates the victims and sufferings of people during the partition. The day remembers the sufferings of many Indians during the partition. It aims to remind Indians the need to remove social divisions, disharmony, and to further strengthen the spirit of oneness, social harmony, and human empowerment. It aims at strengthening peace, love, and unity by eliminating ill will of discrimination and malice. Now, to continue, I'll invite our dynamic and truly patriotic principal, ma'am, to enlighten us and also share some of her stories that she's heard from her father. Principal, ma'am. No, Parul, let Vivek Yagnikji speak, and later on, if I have something, we should hear him first, because my stories are all of flight and sadness. So, of course, partition is a sadness. I will not deny it's not a happy moment. But let Virendra ji speak, and then if required, I will speak over it. He will cover all the things, I'm very sure. So it should not be a repetition. Yes, sir, so it's over to you. Thank you very much. Dhanyavad. So just let me take 2 minutes to introduce you. Virendra ji, he wants to introduce you. Parul wants to introduce you to the guest. Okay. All of them. Yeah. So let me introduce our eminent speaker for today, Mr. Virendra Yagnikji. By education, Sir is a post-graduation in journalism and is fluent in English, Hindi, Gujarati, and Sanskrit. He has served in Oriental Bank of Commerce as Assistant Regional Manager. Sir is associated with many social and cultural organizations
as his committee towards enriching societies with Indian values and culture. He is holding key positions in various boards and committees. He is a chancellor at RVG for CA students, director Nachiket Learnings Private Limited, former director Jan Kalyan Sehkari Bank Limited, governor of Swarn Jayanti Trust, Sri Bhagwat Parivar, and many other associations like Sri Hari Satsang Society, BMS Foundation, Vaishvik Sanskrit Parivar, Hindu Advisory Board, and many more. Importantly, Sir participated in World Religious Meet at UN, New York in 2000 as a member of Indian Spiritual Council. Sir has delivered several talks on Hindu literature, culture, and Ramayana. He has also been honored by Prime Minister of Mauritius for this. Sir writes regularly for magazines, newspapers, and delivers talks on radio and television. With a very warm heart, sir, we welcome you for this most awaited talk. Over to you, sir. Thank you very much. Dhanyavad. आदरणीय श्रीमती चक्रवर्ती जी, पारुल जी, आई एम सीइंग अक्षय जी ऑल्सो, गिरीश जी, गीतेश जी। आज हम सब लोग आजादी के अमृत महोत्सव के पहले दिन मैं आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं। आई एम बिफोर यू and at the outset I am very grateful to Madam Chakravarti that she has remembered me and asked me to deliver a lecture कि हम कुछ बात करें इस बात ने झेला, उस दर्द को हम सब लोग आपस में बांट लें। 14 तारीख 15 अगस्त को हम सब लोगों ने आजादी मिली, देश को आजाद हुआ। 15th August of 1947 and tomorrow we will be completing 75th year of our independence, which has been recognized as a आजादी का अमृत महोत्सव। तो अमृत तो मिल गया आजादी के रूप में, लेकिन हमारे इंडियन स्क्रिप्चर में एक अमृत मंथन की कथा है। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, एवरीबडी शुड नो। महाभारत में है और फिर श्रीमद् भागवत में भी इस बात का उल्लेख आता है और इसमें कहा गया है कि आजादी जब हमने समुद्र मंथन हुआ, चर्निंग ऑफ द सी, चर्निंग ऑफ द ओशन, तो उस समुद्र मंथन में दो चीजें निकली, पहले जहर निकला और फिर बाद में अमृत निकला। This has been told by in our scriptures by rishis 8,000 12,000 years ago। 8,000 12,000 साल पहले हमारे ऋषियों ने वो देखा और देखा गया कि कभी भी कोई मंथन होता है, कभी भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज होती है तो उसमें से पहले तो जहर निकलता है, पहले विष निकलता है और उसके बाद कोई अमृत की प्राप्ति होती है। एंड दिस हैज बीन वेरी राइटली टोल्ड इन वन स्टोरी ऑफ द समुद्र मंथन। और उसमें भागीदारी किसकी होती है? कहता है जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें राक्षस भी थे और देवता भी थे, यानी डेविल्स भी थे और डिवाइन पीपल भी थे। So it is being done by both the parties। ऐसा ही कुछ हमारी आजादी के साथ भी। ये आजादी का जो समुद्र मंथन था, इसमें दोनों प्रकार के लोग थे। सब लोगों ने भाग लिया, लेकिन सब लोगों ने भाग लेने के बाद उससे पहले क्या निकला? उससे पहले विष निकला, उससे पहले जहर निकला। जहर कैसा निकला? जहर ये निकला कि हमारा देश एक नहीं रहा। वी सफर्ड, हम लोगों ने उस पीड़ा को झेला। 75 साल में आज जितने भी हमारे यंग जनरेशन है, दे मस्ट नॉट हैव फेल्ट दैट पेन
द पार्टीशन ऑफ हॉरर, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस आजादी के अमृत को हम मना रहे हैं उससे पहले निकले हुए जहर को समझ तो लें, ताकि उस जहर को फिर से पीने के लिए हमें किसी तरीके से हम कोई काम ऐसा न करें जिससे कि वो जहर बाद में भी पीना पड़े। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, और फेमस सेइंग क्या है? इफ यू डोंट रिमेंबर योर पास्ट, इफ यू डोंट रिमेंबर योर पास्ट यू आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। एक बहुत बड़ी उक्ति है। अगर हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं, अगर हम अपने इतिहास का स्मरण नहीं रखते, अगर हम अपने इतिहास को समझते नहीं हैं, तो फिर हम उसी को दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। और इसलिए ये आवश्यक भी है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत का महोत्सव तो हम मनाएंगे 15 अगस्त को, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को उस पीड़ा के, उस दर्द को भी समझने की कोशिश करें, ताकि इट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन, ताकि वो फिर से दोबारा न रहे। देश बहुत त्रासदी से गुजरा था 14 अगस्त को। आजादी मिल रही थी, लेकिन जो आजादी मिल रही थी वो बटी हुई थी, कटी हुई थी, छटी हुई थी। देश टूट गया था, और उसके बाद हमने फिर उस बटे हुए देश को खंडित देश में अपना तिरंगा लहराया। मुझे अटल जी याद आते हैं इस समय। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। हार गए थे, 14 अगस्त का दिन हारा हुआ दिन। भरी दोपहरी, दोपहरी कौन सी थी? कि हम 15 अगस्त को आजाद होने जा रहे थे। अटल जी ने लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री देश को कभी कभी मिलता है। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। ये जो सूर्य था, भारत का सूर्य जो था, वह विभाजन की पीड़ा से अभिशप्त हो गया, हार गया। जो विभाजन मान्य नहीं था महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को, जो विभाजन मान्य नहीं था अब्दुल गफ्फार खां जैसे महापुरुषों को, जो विभाजन मान्य नहीं था अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोगों को, ऐसे महापुरुष भी, ऐसे महापुरुषों, ऐसे सूर्य रूपी महापुरुष भी उस परछाई से हार गए, जिन्होंने यह आंदोलन चला दिया कि भारत का विभाजन होना चाहिए। The country should be divided. There must be a partition. ध्यान में आया अटल जी ने क्या लिख दिया? भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से आ रहा। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक संदेश दिया। वो संदेश दिया कि अब ऐसा न हो, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जले। अंतरतम, हमारे अंदर की जो मनुष्यता है, हमारे अंदर की जो मानवता है, हमारे अंदर का जो दैवी तत्व है, हमारी जो डिवाइनिटी है, हमारी जो डिग्निटी है, हमारे अंतर का जो उद्रेक है, उसके नेह को, उसके स्नेह को, उसके प्रेम को फिर से निचोड़ें, फिर से समझें, फिर से ध्यान दें। अंतरतम का नेह निचोड़ें, और उससे फिर बुझी हुई अपनी स्वतंत्रता की, विकास की, स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की, मनुष्यता की सेवा की, मानवता को उच्च स्तर तक पहुंचाने की बुझी हुई बाती को सुलगा दें। ये केवल और केवल एक देश है भारत, जो इस प्रकार का नेतृत्व संपूर्ण विश्व को दे सकता है, क्योंकि हमारे पास वह ज्ञान संपदा है। दैट ट्रेजर ऑफ नॉलेज वी आर हैविंग। क्योंकि हम कहते हैं, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः दब्धासो अपरीता स उद्भिदः। Let all the thoughts which are the noble thoughts, they should come from all the way, from all sides. सभी दिशाओं से जितने भी पवित्र विचार हैं, कल्याणकारी विचार हैं, मंगलदायी विचार हैं, केवल और केवल भारत कहता है। आप किसी और देश के स्क्रिप्चर्स में, किसी और देश के साहित्य में ऐसी बात दिखा दो, लेकिन इस देश के ऋषियों ने, इस देश की पवित्र परंपरा ने,
इस देश के मनीषियों ने, इस देश के चिंतकों ने, इस देश के विद्वानों ने यजुर्वेद में लिख दिया, आनो भद्राः क्रतवो यन्तो विश्वतः दबदासो अपरीतास उद्भिदः. Let all the noble thoughts, all the mangalmay thoughts, all the well-wishing thoughts, they should come from all sides of all sides. सभी दिशाओं से आए और आकर के हमें आप प्लावित करें ताकि हम मनुष्यता की और मानवता की सेवा कर सकें. और ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोगों को अपने देश के विभाजन का दंश झेलना पड़ा. इसलिए वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसको समझ तो लो भाई. That horror of the partition, we should remind, we should remember. क्या हुआ था उस दिन, ऐसा क्या होगा, इतना बड़ा देश और बट गया. कैसे बट गया? कहा कि इसकी तो समझ हमें विकसित करनी पड़ी. इस समझ को हम समझें और इस समझ को जानने के लिए हमें कहा कि ये कोई एक दिन की बात नहीं थी. इट इज नॉट वन डे. ये एक दिन में नहीं हुआ, ये परंपरा से चला हुआ. बहुत दिनों से इस परंपरा को स्वीकार किया गया, इस ट्रेडिशन को स्थापित किया गया और कहा गया कि नहीं ये तो होगा. आपको मालूम है काकीनाडा में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, एंड दैट वाज इन 1923. काकीनाडा में एक अधिवेशन हुआ. विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने उस अधिवेशन के प्रारंभ में उद्घाटन के अवसर पर, पलुस्कर बहुत बड़े गायक थे, हम सब जानते हैं. अभी भी हम सब लोग, जो लोग पुरानी पीढ़ी के हैं, वो लोग सब सुनते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर. विष्णु दिगंबर पलुस्कर को कहा गया कि आप वंदे मातरम का गीत गाएं और उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ होगा. काकीनाडा का अधिवेशन था 1923 में. उस काकीनाडा के अधिवेशन में हजारों कार्यकर्ता, देश को समर्पित करने वाले, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने वाले, सभी के सभी वहां पर एकत्रित थे. कांग्रेस के उस अधिवेशन में विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1923 में वंदे मातरम का गान शुरू किया. और जब गान शुरू हुआ तो अली बंधुओं ने, जिसमें मोहम्मद अली जौहर थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आई डोंट एक्सेप्ट दिस वंदे मातरम सॉन्ग. यहां से शुरुआत होती है विभाजन की वो मनस्थिति, वो मानसिकता कि किस तरीके से एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, कहता है हम भारत को माता नहीं मानते, वंदे मातरम सॉन्ग को हम बहिष्कार करते हैं. खड़े हो गए और खड़े होकर के मंच से नीचे उतर करके चले गए. और जब वंदे मातरम गान खत्म हुआ तो फिर ऊपर आकर के बैठ, हमने स्वीकार कर लिया. राइट फ्रॉम देयर दिस स्टार्टेड. ये पार्टीशन का बीज था. दैट इज द सोइंग ऑफ द सीड ऑफ द पार्टीशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे. ये पार्टीशन, और वहां से चलती है सारी बात. दैट स्टार्टेड द ट्रेडिशन. That started, yes, that there are two different cultures, there are two people, there are two nations. ये जो two nation theory की बात आती है, ये वहां से शुरुआत हुई. और अंततो गत्वा अंग्रेज तो चाहते ही यही थे. They wanted this. वो तो किसी तरीके से यहाँ पे छोड़ना ही नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान को किसी तरीके से छोड़ दें. क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? क्योंकि यहां से ही सब कुछ मिल रहा था. जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया है, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, इट इज ऑल हम्बग. जितना उन्होंने लूटा उसका 1% भी उन्होंने वापस करके हमें नहीं दिया. नॉट इवन 1%. और इसलिए ये आवश्यकता है, ये जरूरी है कि हम उस बात को देखें और उस बात को समझें. What the Britishers have given to us and what they have taken our the entire nation. बांट करके हमको चले. जहां पर आज तो 140 करोड़ है, जिस समय हम आजाद हुए तो उस समय तो सिर्फ 34 करोड़. We were only 35 crores. Today we are 140 crores.
एंड दैट टू इन डिवाइडेड इंडिया। वो 34 करोड़ जो लोग थे वो तो कहाँ के थे? अनडिवाइडेड इंडिया के। दैट इज ऑल्सो टू बी सीन, बट वी वर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय 34 करोड़ लोग भी ठीक ठाक ढंग से अपने जीवन को जी रहे थे। लेकिन आज की जो परिस्थिति में, when we are having for 140 crores people, then you can see the plight of the people here, because it is the legacy which has been left by the Britishers to us, and we are not able to come out from that. हम वहां से शुरू ही नहीं होते। इसलिए प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं, भाई जो पार्टीशन का दर्द है, आपको मालूम है, हम सब लोग समझ लें, 2 करोड़ लोग जो हैं डिस्प्लेस्ड हुए थे। 2 करोड़। मैडम मस्ट बी नोइंग मच बेटर। हालांकि बाद में यहाँ पर हिंदुस्तान में उनका जन्म हुआ होगा मैडम आपका, लेकिन बट योर फादर्स दे मस्ट हैव सफर्ड। उन्होंने इसकी सफरिंग की। 2 करोड़ पीपल वर डिस्प्लेस्ड। किसी भी संसार की कोई भी ऐसी घटना नहीं है जहां पर 2 करोड़ 200 million people are displaced from one place to another, और 20 लाख लोग मारे गए। 2 million people, जिसमें औरतें थी, बच्चे थे। मिलिट्री मारी जाए तो समझ में आता, कोई झगड़ा हो जाए जैसे यूक्रेन और रूस में अभी हो रहा है, समझा जा सकता है कि वहां पर वो हो रहा है। बट देन if it is in the this, then it cannot be tolerated. बच्चे और महिलाएं जिस तरीके से उस पूरे के पूरे पार्टीशन में उनका नरसंहार हुआ, यानी उनका संहार हुआ, अनप्रेसिडेंटेड, अकल्पनीय, समझ भी नहीं आता। और इस अकल्पनीय नरसंहार की स्मृति को अपने दिल में रख करके वो फिर से न हो, इसका संकल्प लेने के लिए हम सब ने प्रयत्न करना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन। कैसे हो गया इतना बड़ा काम? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। दे वांटेड दैट समथिंग शुड बी डन। हम जा तो रहे हैं यहां से, वी आर गोइंग, लेकिन जाते जाते हम कुछ ऐसा जरूर कर जाएं। और चर्चिल को तो विश्वास भी नहीं था, हालांकि वो उस समय विरोधी पक्ष के नेता थे, विपक्ष के नेता थे। उनको तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था, और उन्होंने तो बड़ा विरोध भी किया था कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को कोई आजादी नहीं मिलनी चाहिए। बट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्थिति ऐसी बन रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारा ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ, और युद्ध में तो हमेशा नुकसान होता ही है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू हो गया था, करो या मरो का आंदोलन दिया था। जितनी भी चीजें हुई थी उसमें भारत का मन, भारत का जनमन जागृत हो गया था। अंग्रेजों को भगाने के लिए एक नए प्रकार की, एक न्यू एनर्जी been inspired by the महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तो इन सब लोगों ने एक नई इंस्पिरेशन क्रिएट कर दी थी कि हम आजाद होंगे। उस आजादी के आंदोलन की स्थिति को ध्यान में रखकर, उस चेतना से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, उस आंदोलन के प्रभाव के कारण ये आवश्यक हो गया ब्रिटिशर्स को कि दे शुड लीव दिस कंट्री। लेकिन दे वांटेड टू इन्फ्लिक्ट समथिंग टू ऑन दिस कंट्री सो दैट इट कैन बी, दे कैन डिस्ट्रॉय द वेरी कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिस ग्रेट नेशन। जाना तो है, लेकिन कोई ऐसी दर्द दे जाए, कोई ऐसी पीड़ा दे जाए जिस पीड़ा को हम 75 साल के बाद भी जिसको पूरी तरीके से भर नहीं सके, जिस घाव को भर नहीं सके। तो याद नहीं करना चाहिए इस पीड़ा को, समझना नहीं चाहिए कि क्यों हो गया ऐसा, और आगे आने वाले समय में न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए।
इसलिए फैलाई गई हिंसा को, फैलाई गई नफरत को हम किस तरीके से करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छी बात प्रीएम्बल में लिखी। उस प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन को, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को, उसकी उद्देशिका को, उसकी प्रस्तावना को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दैट इज द सिंबल, दैट इज द गाइडिंग फोर्स ऑफ अवर फर्दर डेवलपमेंट। क्या कहा उसने? वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic। हम sovereign democratic republic, हम भारत के लोग, हम लोगों ने निश्चय किया, हालांकि कटे फटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम, हमारा जो सिद्धांत है उसके प्रति हम अविचलित हैं। We will not deviate from our that principles। That is important। ये इंपॉर्टेंट है आज के दिन समझने की, जानने की। And the importance is this, that we the people of India having solemnly constitute India into a sovereign democratic republic। बाद में 1942 अमेंडमेंट आया और उसमें उन्होंने सोशलिस्ट और क्या कहते हैं, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिख दिया, जोड़ दिया। बट द ओरिजिनल इज दिस, मूल तो ये, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। जो भाग हमसे कटा वो डेमोक्रेटिक भी नहीं रहा, रिपब्लिक भी नहीं रहा, और सॉवरीन कितने दिन रहेगा हम नहीं जानते। जिस आधार के ऊपर गया वो पाकिस्तान बट गया। 1971 में वो पाकिस्तान जो कि एक टू नेशन थ्योरी के बेसिस के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण बना, वो बट गया, वो एक बांग्लादेश बन गया, वो दूसरा वेस्ट पाकिस्तान जो है वो अपने पास रहे। वो तो नहीं, वो तो बट गया, लेकिन जो रहा, जो हम थे, जो अपने प्रिंसिपल पर थे, वो बचे रहे। एंड टुडे ऑल्सो ऑन द ईव ऑफ द 75th अमृत महोत्सव आजादी का, इंडिपेंडेंस डे, when we are completing 75th glorious year of our country, we are one। आज भी बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं, लेकिन even then everywhere there is a तिरंगा यात्रा। On every rooftop you will find that our tricolor is unfurled। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to ensure all its citizens। क्या देंगे हम? ये कहा हमारे देश ने, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि हम देंगे क्या? कहता हम देंगे जस्टिस, and not one justice, economic, social and political, liberty of expression, thought, belief, faith and worship। हम क्या दे सकते हैं? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और फिर उसके बाद जो बात कही वो सबसे बड़ी बात कही, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सबके साथ न्याय हो, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सबको स्वतंत्रता मिले, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म शब्द ठीक नहीं है, पंथ और उपासना। धर्म का मतलब पंथ नहीं है, धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं है, धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है। धर्म इट इज ए वे ऑफ लाइफ। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध धर्मम दश लक्षणम। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी कुछ नहीं आता है। उसने कहा कि धर्म नहीं, पंथ। सबको अपने अपने दृष्टि से पूजा पद्धति का, सबको अपनी दृष्टि से अपनी परंपराओं का पालन करने का पूरी पूरी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सभी समान हैं। अवस्थिति कैसी है? सभी समान हैं। अपॉर्चुनिटी, अवसर भी समान रूप से दिए जाएं। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और उसके बाद उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ये पहली बात कही है। बाद में कहा है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले।
the dignity of the individual. That has to be established. व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, the fraternity, to promote among them all the dignity of the individual and the जो dignity individual की dignity है and the fraternity among them all. We today on 26th of November 1947 क्या करते हैं? हम इसको अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं. प्रमोट देम अमंग ऑल. क्या करते हैं? हम इसको मानते, हम इसको बनाते हैं. वी एक्सेप्ट इट. और उसके बाद उसको अधिनियमित करते हैं, उसके पर कानून बनाएंगे और फिर उसके बाद उस कानून का पालन करने का रिजोल्यूशन भी है. हम उसको अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और आत्मार्पित करते हैं. वी गिव इट अवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ये दस्तावेज. With this message we have entered into our independence life of the country. ये इंडिपेंडेंस का मंत्र दिया. लेकिन उससे पहले उन स्मृतियों को बनाए, क्योंकि हमने इन सारे दंश को सुना. हमारे पास अंग्रेजों ने हमारे पर अत्याचार किया था, हमारे बीच में डिवीजन कर दिया था. हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, सभी लोगों का डिवीजन. एवरीबडी डिवाइडेड, डिवीजन कर दिया. उस डिवीजन से बचने के लिए हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से यहाँ की सरकार, किसी भी की सरकार रही, लेकिन उन सब लोगों ने ये रिजॉल्व किया that the country which we are going to make it will be free. It will have for the purpose of the humanity. ये केवल और केवल मानवता की सेवा करने के लिए काम करेगा, डेवलपमेंट करेगा. लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों ने जो दंश सहा, जो नरसंहार हुआ, उसको याद तो करना चाहिए. प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने ये अच्छा ही किया है, क्योंकि ये जनरेशन तीसरी या चौथी जनरेशन होगी जो कि 75th ईयर में. पता ही नहीं होगा, हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे आगे आने वाली जनरेशन और उसके आगे आने वाली जनरेशन, उनको कम से कम ये बता तो दें कि इस देश को जो आजादी मिली है वो बिना खड्ग और बिना ढाल के नहीं मिली. वो किससे मिली है? हजारों हजारों लोगों की शहादत से, लोगों के बलिदान से मिली. स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के बलिदान से प्राप्त हुई. उसका कर्ज हमारे ऊपर है और उस कर्ज को ठीक ढंग से चुकाने का केवल एकमात्र तरीका ये है कि हम अपनी नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करें. मैंने एक किताब पढ़ी तो उसमें एक रूस में एक परंपरा है और वो परंपरा मैं बताना चाहता हूँ. रूस में जब नवविवाहित यानी न्यूली वेड कपल, जब उसकी शादी हो जाती, जब उसका विवाह हो जाता, when they get married, तो they may be going to their, जहां पर भी जाना है, चर्च जाते हैं या जहां पर भी जाते हैं. लेकिन आफ्टर गोइंग देयर, फिर उसके बाद एक और वहां पे ट्रेडिशन, एंड दैट ट्रेडिशन इज ए वंडरफुल ट्रेडिशन. उस ट्रेडिशन के बाद फिर वहां पर हर शहर में कोई ना कोई शहीद स्मारक होता है. उस शहीद स्मारक पर वो न्यूली वेड कपल जा करके अपनी श्रद्धांजलि देता है उन शहीदों को, जिन शहीदों के कारण वह इस स्वतंत्र देश में रह रहा है. और वो संकल्प लेता है अपने आप को कि मैं भी जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी शहादत दे करके अपने देश की सेवा की, हम दोनों मिल करके एक परिवार बना करके अपने देश के प्रति समर्पित हो. कैन यू बिलीव इट? हमें नहीं करना चाहिए. हम लोग भी तो विवाह कर रहे हैं, लेकिन वह देश ये बताता है, उस देश की जो परंपरा कहती है, अच्छी परंपरा है. कोई भी हो, whosoever it is, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का पालन करने वाला,
लेकिन जाकर के वो वहां पर अपने शहीदों के स्मारक पर जाकर के फूल चढ़ाता है और वहां पर अपने आप को समर्पित करके ये प्लेज लेकर के आता है कि एज दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द पर्पस ऑफ द नेशन, वी विल आल्सो डू दैट। हम भी यही करें। मैं चाहता हूं, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि ये स्वतंत्रता हमें मुफ्त में नहीं मिली, ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए हमारे बहुत सारी पूरी की पूरी जनरेशन ने अपनी शहादत दे दी। उस शहादत को याद करना, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो बात कही गई कि द जनरेशन which doesn't remember his past, they are condemned to repeat it। इस देश में इस समय जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये रिपीट न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये ठीक ढंग से आगे हमारे देश की आजादी चले, हम उसको ठीक ढंग से समझें। अंग्रेजों ने जो दंश हमें दिया 200 साल की गुलामी के अंदर, उस गुलामी की मानसिकता को त्याग दें। We should be independent. We should think that we are an independent nation. Our culture is different. Our tradition is different. जैसा कि उन्होंने कहा, जैसे नेहरू जी ने ट्रस्ट विद द डेस्टिनी के अपने बहुत बढ़िया भाषण में उन्होंने कहा था कि जब सारा संसार सो रहा है तो भारत जग रहा है। तो भारत, द इंडिया शुड अवेक। और इस अवेकनिंग का ये जो काम है, ये कौन करता है, कैसे करता है? ऐसे ही करता है कि हम अपनी उस परंपराओं को समझें। वी हैव गॉट ए डिफरेंट ट्रेडिशन ऑल टुगेदर, वी हैव गॉट ए डिफरेंट वे ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर, वी हैव गॉट ए डिफरेंट थिंकिंग ऑल टुगेदर। वो जो डिफरेंट थिंकिंग है, वही हमें दूसरे लोगों के साथ अलग करती, that makes us different from others. And that is why today, when we are going to celebrate 75th year, we may get the news, जिस हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, हो सकता है कोई ऋषि आकर के अब अंग्रेजों के ऊपर शासन करेगा। कोई ऋषि, some rishi Sunak can come and be the prime minister of the Britain। कोई ऋषि आकर के कर सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ कि हमने उनको जाकर के किसी तरीके से धोखा दिया, बिकॉज ऑफ दैट एनलाइटनमेंट एंड द एनर्जी एंड द नॉलेज। ऋषि सुनक ने क्या नहीं किया वहां। एंड देन टुडे विद हिज नॉलेज एंड क्वालिटी, ही इज गोइंग टू लेट द ब्रिटेन एज ए प्राइम मिनिस्टर। मे बी, हो सकता है न भी हो, बट इवन देन ही इज प्लेइंग ए वंडरफुल रोल in the shaping of the Britain's economy and all। हमने किसी के ऊपर जाकर के कोई आक्रमण नहीं किया, किसी को तलवार से नहीं मारा, किसी का तन धड़ से अलग नहीं किया, प्रेम से, प्यार से, और उन लोगों की जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए हमारे उस अस्तित्व का लोगों को पता लगा। एंड देन टुडे इन अमेरिका एंड द ब्रिटेन एंड इन अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड also, there we the people of India are in demand। You should come, serve us, lead us and take it to the new heights। इस पूरे परिवेश में हम लोग कल अपने 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को मनाएं। अटल जी मुझे फिर याद आने लगे हैं, और मैं उनकी ही कविता से समाप्त करूंगा कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों ने घेरा। यज्ञ चल रहा है, राष्ट्र रक्षा का यज्ञ है, राष्ट्र के विकास का यज्ञ है, राष्ट्र को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने का यज्ञ है, राष्ट्र को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का यज्ञ है, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का यज्ञ है। आहुति बाकी, उसके लिए हम सब लोगों ने आहुति देनी। लेट द न्यू जनरेशन शुड कम अप, टेक दिस प्लेज that we will give ourselves for the glory of the nation, for shaping this nation into taking it to the new heights। एक नई ऊंचाई के ऊपर ले जाने के लिए आहुति बाकी है, यज्ञ अधूरा है,
क्योंकि अभी भी आत्मनिर्भर की जो कल्पना है वह हम पूरी नहीं कर पाए। आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों ने घेरा, तब क्या करें? अंतिम जय का वज्र बनाने, टू अचीव दोज थिंग्स, अंतिम जय का वज्र बनाने नई पीढ़ियां आगे आए। ये जो नई पीढ़ी है, अंतिम जय का वज्र बनाने, तो अटल जी ने शब्द यूज किया है नवदधीच, नवदधीच, हड्डियां गलाएं। दे शुड वर्क फॉर दैट। नवदधीच, हड्डियां गलाएं, तो क्या होगा? आओ फिर से दिया जलाएं। आइए फिर से हम वो दिया जलाएं, इसका स्मरण करके अपने सभी शहीदों की स्मृति को अपनों प्रणाम करके कल हम सब लोग आजादी के अमृत महोत्सव का पान करें। ये अमृत क्या है? ये हमारी संजीवनी है, हमें विकास के पथ पर आगे ले जाने वाली एक प्रेरणा है। इस प्रेरणा से हम सब लोग 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मनाएं। 140 से अधिक लोग कल अपने अपने घर में तिरंगा फहराएंगे, देश के प्रति समर्पित होंगे और मातृभूमि की वंदना करके नव संकल्प के साथ देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, और उसमें आप जैसे ऋषियों की जो लोग नई जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, those who are the teachers, those who are the guide, जो हमारे गुरु परंपरा के लोग, हमारे यहाँ गुरुओं की बहुत श्रेष्ठ परंपरा है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम्। वो बेचारा बच्चा जो आपके पास आता है उसको कुछ नहीं आता है, आप उसको अपने ज्ञान का अंजन दे करके उसकी आंखें खोलते हैं, and then they become what? They become the budding, they become the scientist, they become the management guru। आपके द्वारा होता है, you create them, आप you shape them। तो आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, जितने भी टीचर्स फ्रेटर्निटी है, जो गुरु परंपरा के लोग हैं, जो तपस्या कर रहे हैं नई पीढ़ी को तराशने की, नई पीढ़ी को बनाने के लिए, और उन सब को प्रणाम करते हुए कि हम एक ऐसी पीढ़ी की रचना करें जो इस देश की नव पीढ़ी को अगले 25 वर्ष, जब हम 100 वर्ष मनाएं, तो ये देश विश्व गुरु के स्थान पर बने, इस विश्व गुरु के स्थान पर रहे। ऐसा संकल्प लेकर के हम सब लोग अगर आज की स्मृति को अपने आप को समर्पित करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेरणा का क्षण भी हो सकता है, अपने आप को देखने का भी क्षण हो सकता है। वी कैन टेक इट अवरसेल्व्स, हम अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी हो सकता है। वी सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेड, वी आर डूइंग फॉर द नेशन, हाउ वी शुड डू इट। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का दिन, ये स्मृति का दिन हम सब लोग अपने उन लोगों को समर्पित करते हैं जिनके बलिदान से, जिनके जीवन दान से हमें ये बहुत ही अमूल्य स्वतंत्रता की गिफ्ट यानी उपहार प्राप्त हुआ है। इस देश की सेवा करते रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग, आप सब भी जितने भी लोग हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात अटल जी ने कही थी, मैं उसको दोहराता हूं। भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये केवल जमीन नहीं है। हम शायद विभाजित हो गए हैं, लेकिन जितना भी है वो हमारा है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर इसकी शिखा हैं, शिखा माने चोटी। कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। विंध्याचल कटी है, कमर है, नर्मदा उसकी करधनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं, भाद्रपद है। घने घने बादल जब आते हैं तो यही भारत के कुंतल केश बन जाते हैं। चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं।
ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है, जिसका कंकर कंकर शंकर है, जिसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे भी तो इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। Thank you so much, sir. Sir, the way you related the Samudra Manthan to the independence struggle makes it very lucid for all of us to understand the good and the evil of the partition. What hit us hard was the quote that you said, if you do not understand your past, we are doomed to repeat it. With the tales of unprecedented horror and pain heard today, we hope and pray to never repeat it. Aao milke hum sab diye jalaएं. May the divinity, dignity and love enlighten all our lives. Ma'am, we are very thankful to you for facilitating this important session and introducing us to this great history through Yagnik ji. To propose a formal closure for today's session, I now invite Dr. Vijay Jadhav, the Dean of Science, Thakur College of Science and Commerce, to take it forward. Sir, over to you. Madam should share his experiences. Actually, she wants you. Sir, my my experience, whatever I had heard from my father, were painful. So, of course, it was pain from both sides. The Sikhs coming all the way from Sindh, Bengalis coming all the way from Pakistan, Bangladesh, and the Muslims going out from here. The women are the most, they had the most trouble that time. My father says, मेरी एक फूफी थी, उनकी 3 बेटियों को साइकिल रिक्शा पे बिठाया और वो रास्ता बदल के उनको लेके चले गए, वो जिंदगी में कभी मिले नहीं। ऐसे बहुत सारी कहानियां हुई है। मेरी एक फूफी थी जो बांग्लादेश में थी, सो द होल फैमिली केम टू कैलकाटा। उसके घर पे तुलसी का झाड़ था, तो जमींदार थी वहां की, तो बोलती है मैं अगर यहाँ से चली जाऊं मेरे गांव से, इफ आई गो आउट फ्रॉम दिस विलेज, मेरे तुलसी का झाड़ को कौन ध्यान रखेगा, और जो गरीब लोग हैं मेरे आजू बाजू उनको कौन ध्यान रखेगा। बट दैट सेम लेडी वाज किल्ड बाय वन ऑफ द पर्सन हु वाज वर्किंग इन द फार्म लैंड ऑफ अस। और यहाँ पर मुस्लिम की अगर बात करें, एक छोटी सी लड़की जब कैलकाटा में जब वो स्लॉटरिंग चालू हो गया था, हंड्रेड्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स बोथ वे, जो जहीं पर मिला चाकू से काट रहे थे गले। हिंदूज वे कटिंग द नेक ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम कटिंग द नेक, और एकदम मैसेकर था कैलकाटा शहर में। तब एक छोटी सी लड़की कैसे बच गई, और उसका वो घोड़े का इस्तांबुल था उसके पास, अपने आंख के सामने माँ बाप को काटती हुई दिखी, वो छुपके से बैठ गई, 2 दिन तक ऐसे बैठी रही। और जब उसको चाचा को 2 दिन बाद जब परिस्थिति ठीक हो गई, when her चाचा came and started calling out for a mother and father, वो डेड बॉडी उसके सामने 2 दिन से पड़ा था, माँ बाप का, भाई बहन का। वो अकेली वो एक घोड़े के बीच में जाके छुप के बैठ गई, वो बच गई। तो उसका चाचा उसको उठा के लेके जाता है पाकिस्तान। So it is, the story is both the side. It is not that only Hindus suffered, the Muslims also suffered. So let us all make up, we should read the book. It is for the entire humanity. Yes. Whosoever it is. Whosoever it is. I mean, both the side were disturbed, the land went, people did not, one generation could not get proper education also. And it was a great struggle. Of course, those people who have come from Pakistan or Bangladesh to India, they are all not much settled in Calcutta, but all other places, but they are well settled. जैसे आप देख लो सिंधी लोग को जो सिंध से आए थे, they are better settled. They have worked hard to make their livelihood. तो ये पार्टीशन जो हमें खुशवंत सिंह का वो जो ट्रेन टू पाकिस्तान, all of us should read that book. And there he has mentioned that how the plight took place, who were responsible. ऐसे नहीं है हिंदू के घर पे मुस्लिम को भी स्थान मिला, वो बच गए, मुस्लिम के घर पे हिंदू को बचाया, ऐसे भी हुआ है। बहुत सारी कहानियां हैं, सब बुरी कहानियां नहीं है, एक दूसरे को बचाने में भी लग गए थे कि सब पहले मिलजुल के रहते थे। ये तो पॉलिटिकल इशू था कि हमें इंडिया और पाकिस्तान को, इंडिया और हिंदू मुस्लिम को विभाग करना है। इंडिया को विभाग नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम को विभाग करना है, because it started, you rightly said, in 1923 with religious problems and all. Then started खिलाफत आंदोलन वगैरह हुए और उसमें वही so some wrong steps were also taken on that particular time. Exactly. But that should not be taken now.
Oh, yes. And we should learn the lessons from them Yes. and take the corrective steps. The need of education is much more. Need of It it. is the responsibility of the teachers, and the system of the education should be like that the students who are coming in the colleges and the schools, they should be told how to live with humility and humility. That is very important. So I find that education is the most important tool to create an harmony in this particular society. हम शिक्षित करें, और शिक्षा यही है कि वह हम जैसे भी रहें, गरीबी में भी रहें तो भी, अमीरी में रहें तो भी, गरीबी में हम बहुत ज्यादा गड़बड़ ना करें, अमीरी में हमें अहंकार ना आए, और हम सब मिल करके एक साथ रह सकें, ऐसी एजुकेशन की आज सबसे ज्यादा जरूरत. मेक द करेक्टर. इफ यू सो एन हैबिट, तो ऐसी हैबिट बननी चाहिए. इफ यू सो एन हैबिट, you will, if you sow an habit, you will reap the character. आपको एक character मिल जाएगा. And action will be due. So all actions should be to create an habit, and that habit should create a character. And if you sow the character of all the people of the nation, then you will definitely reap the destiny of this great nation. तो बहुत दर्दनाक है, जब हम कहते हैं तो आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, रोमांच खड़ा हो जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं. कैसा दर्द उन सब लोगों ने सहा होगा. बस उस दर्द को, उस पीड़ा को हम भी समझ लें और उनकी स्मृति को प्रणाम कर लें, और फिर ऐसा न हो इसका संकल्प ले लें, तो मैं समझता हूँ हमारा ये आज का कार्यक्रम बहुत सार्थक होगा. धन्यवाद. Yes, सही. Thank you, sir. Vijay sir, over to you. Yeah, thank you, Parul ma'am. Very good morning to one and all. Tomorrow, India is celebrating its 75th Independence Day. Today is 14th August. We are celebrating this day as Partition Horrors Remembrance Day. It is to remind the country of the largest displacement of human population in the last century, which also claimed the lives of a large number of people. Sir, really we are lucky to have you as a speaker for this particular occasion. In your speech, you have covered almost all the details of the partition that had happened 75 years back. So on behalf of Principal Ma'am, management, and all the faculties of Thakur College of Science and Commerce, I'm really thankful to you for this wonderful and informative session, informative lecture. I'm also thankful to our beloved Principal Ma'am for giving us this opportunity. I'm thankful to all the participating teachers and students in large number for making this event a grand success. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Ma'am, with your kind permission, may we Yes. end